Tell me, sound is audible? Okay. Give the first heading, that is alcohol, phenol and ether. Next chapter is alcohol, phenol and ether. Start करें बेटा? Yes. Good morning. Good evening to all of you. Very good evening to all of you. To start our first lecture of chapter, that is alcohol, phenol and ether. बेटा माइक म्यूट कर दो अपना. Okay. Now, firstly, we are discussing about alcohol. Firstly, we are discussing about alcohol. Now, how will we get alcohol from alkane? It is your alkene. If we are eliminating hydrogen atom from here and adding up of a alcohol group, OH group, then we obtain ROH. Simply, it is alkyl alcohol or called alcohol or secondary suffix. What is secondary suffix of alcohol? It is all. You all know about it from class 11 IUPAC. Now, without wasting of time, we are moving our topic, that is classification. बेटा साउंड म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए. भाई मोहित कौन है? माइक ऑफ करो अपना. नाउ लिसन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. फर्स्ट classification, if single OH group is present. Now listen, if single OH group is present, then we use word mono. Sir, mono? अरे mono नहीं, छोटा भाई है. Mono है. No. OH. If single OH atom is present, then we use word mono, and it is called monohydrate. How? Now look here. CH simple is CH3OH. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. Second, it is CH3CH2OH. Now look here, CH3OH. It is called methanol, methane plus all, or it is also known as methyl alcohol. कॉमन सिस्टम में इसको मिथाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी में इसको बोलते हैं बेटा क्या हम, मीथेनॉल. सेकंड वन, इट इज कॉल्ड इथेनॉल, एंड इन कॉमन सिस्टम इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल. अगर मैं आपसे ये पूछूं, सारे खुश हो जाएंगे, मार्केट में जो वाइन मिलती है उसमें कौन सी अल्कोहल होती है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल. तो याद रखना, मार्केट में जो मिलती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी, इथाइल अल्कोहल C2H5OH. नाउ लुक हियर, OH is attached with that particular carbon atom which is already attached with single methyl group. और आप सबको पता है
इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या हुआ? 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए किसी को। Suppose this is given to you CH3CH CH3OH. Now listen, it is connected with 2 methyl group, so it is called 2 degree or secondary alcohol. Who will tell me the common name? I am not asking about the IUPAC name. I am just asking about the common name. So what will be the common name of secondary alcohol? Reply. Who will tell me the common name of secondary alcohol? Now tell me first, sound is audible or not? थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलो। अच्छा, जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है उसका कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 1 2 3 1 2 3, यहां से भी सेकंड लोकेशन, यहां से भी सेकंड लोकेशन। इट इज प्रोपेन 2 ऑल in IUPAC system, and in common system it is very famous isopropyl alcohol. It is isopropyl alcohol. Now next example, CH3CH3OH. Now look here, it is connected with 3 methyl group. ये कितने methyl group के साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। और अगर 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं टर्शियरी 3 डिग्री, टर्शियरी TERT, टर्शियरी 4 कार्बन ब्यूटाइल in common system, tertiary butyl alcohol. And according to IUPAC 1 2 3 or 1 2 3 on 2 methyl group is present, so it will be 2 methyl, and 4 3 it is prop and root word is in 2 methyl propane 2। ये बात करी जब हमने ओनली सिंगल एल्कोहल प्रेजेंट है मोनोहाइड्रिक की। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। भाई आईयूपीएससी आनी चाहिए, ये तो 11th का क्वेश्चन है। आईयूपीएससी नहीं बताऊंगा मैं, या आप सोचो सर आईयूपीएससी एक्सप्लेन करो, आईयूपीएससी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 11th का पोर्शन है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी तक बात करी हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। Second is polyhydric alcohol. Number of OH group, N means number of OH group will be more than 1. मेरे प्यारे बच्चों, अगर OH ग्रुप 1 से ज्यादा है तो वहां हम पॉलीहाइड्रिक वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज CH2OH, सेकेंड इट इज CH2OH, CHOH, and it is CH2OH. Here I have provided you 2 types of polyhydric alcohol. My dear students, look here. How many OH groups are present here? 2. So it is called dihydric type of alcohol.
2 means di. Here 3, it is trihydric alcohol. Both are very important. It is called glycol. ये ग्लाइकोल होता है, तो कॉमन सिस्टम में इसका जो नाम होता है बेटा, कॉमन सिस्टम में इसको हम बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल. इट इज इथाइलीन ग्लाइकोल. आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 8 रूट वर्ड इन इथेन 1,2 1,2 डाई इथेन 1,2 डाई. ये भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये वाला. ये होती है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के बारे में लड़कियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं. ये फेस पर लगाने के काम आता है सर्दियों में. इट इज ग्लिसरॉल. तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 किस किस को ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हैं वो यस बोले फटाफट. भाई यस और नो तो बोला करो बेटा. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. इस पॉइंट को तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एलिन में भी स्टडी किया है. इट इज एलाइलिक एल्कोहल. आप में से कौन बताएगा कि एलाइलिक क्या होता है? दो कंडीशन बता रहा हूं. कंडीशन फर्स्ट है एलाइलिक रिंग. गलत है यश आंसर आपका. डबल बॉन्ड के साइड वाला पोजीशन. अखिलेश वेरी गुड बेटा. अखिलेश आंसर इज करेक्ट. नाउ लिसन, इफ एनी ऑफ ग्रुप, कोई भी ग्रुप है आपका फंक्शनल, अगर वो पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है और ये sp3 अटैच है sp2 कार्बन से, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक. Now how? Look here. CH2 double bond CH, CH2 and OH. Now what is the hybridization of this one? 1 2 or 2 4 4 sigma, so it is sp3. 1 sigma 2 sigma 3 sigma 3 sigma means sp2. Now look here. OH is connected with that particular sp3 hybridized carbon atom which is already attached to hybridized carbon atom. बेटा माइक म्यूट कर लो. मैं लेक्चर ना अभी ओवर कर दूंगा आपकी बार आवाज आया तो. सुनो, here functional group is connected with that particular sp3 hybridized carbon atom which is already attached with sp2 hybridized carbon atom. It is called acylic alcohol. If on the place of OH halogen is present, then it is called as acylic halide. ये पॉइंट किस किस को क्लियर है बताओ, फिर आगे चलते हैं विनाइल पे. बेटा लिखने के लिए परेशान मत हो, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा. आप तो समझो, अभी टाइम दे दूंगा. यहां तक क्लियर है? ओके. पॉइंट नंबर 4, इट इज विनाइल और वाइनिल. कई लोग वाइनिल के बोलते हैं बट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन विनाइल है. कई लोग वाइनिल बोल देते हैं. विनाइल एल्कोहल. नाउ लुक हियर. In acylic group was attached with sp3, but here the group will be directly attached with sp2 hybridized carbon.
यहां पहले sp3 फिर sp3 sp2 से, यहां डायरेक्ट sp2 से कनेक्टेड होगा। सो लुक हियर, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। OH is directly attached with sp2 hybridized carbon atom, so it is called vinyl और vinyl और vinylic और vinylic, कुछ भी मिल सकता है। IC vinylic भी मिल सकता है या vinyl भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो यहां क्या होगा, देखो जो OH ग्रुप है वो पहले तो बेटा जी अटैच होगा sp3 कार्बन से। OH कहां से अटैच होगा, पहले sp3 से, और sp3 अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। देखो भाई, X with sp3 group with sp3 group with sp3 सेम, ग्रुप विद sp2 ग्रुप विद sp2 सेम है, बट यहां बेंजीन रिंग आ रही है। एलाइलिक का बेंजीन नहीं होती, बेंजाइलिक का बेंजीन रिंग होगी। फॉर एग्जांपल लुक हियर, CH2OH, OH is attached with sp3 and sp3 is attached with sp2 hybridized carbon of benzene। तीनों में डिफरेंस देख लो, ग्रुप विद sp3 ग्रुप विद sp3 sp3 विद sp2 sp3 विद sp2 but of benzene ring। group is directly attached with sp2 carbon atom। कोई मुझे इसका नाम बताएगा IUPAC? बेंजाइलिक, फर्स्ट रिपीट करो, 1 मिनट कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट मुझे बेंजाइलिक एल्कोहल में जो एग्जाम्पल लिखा है, कौन सा वाला, ये वाला, इसका IUPAC नेम बताने का कष्ट करेगा? सर हम कष्ट वाले कोई काम नहीं करते सर, हम कष्ट ही तो नहीं कर सकते। ये पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत नहीं है कि हम लेक्चर में बैठे, हम तो लेक्चर में भी नहीं बैठे। चलो भाई, मैं नेम अनाउंस कर रहा हूं स्टूडेंट्स का, देखो फिर बेइज्जती भी चालू करेंगे। आकांक्षा, अखिलेश और चेतन, आकांक्षा, अखिलेश और चेतन, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताओ। मोनिका ने बताया है फिनाइल मीथेनॉल, और कोई? मोनिका, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वन थिंग इज मिसिंग हियर। देखो एक तो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, मेन चेन वही बनेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये मेन चेन और ये क्या हुआ, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है उसके लिए हम लगाते हैं फिनाइल। तो वन फिनाइल, वन पे क्या है, फिनाइल। ये क्या हो गया, मैथ रूट वर्ड इन और वन फिनाइल मीथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। अब कॉमन नेम तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। कॉमन तो सामने लिख ही रहा है, बेंजाइलिक एल्कोहल। इसको कोई दोबारा पूछ रहा था तो समझो, यहां ही ग्रुप है, ये अटैच है sp3 से और sp3 अटैच है sp2 कार्बन से। अगर ये कंडीशन कहीं बन रही है ना, वो होगा एलाइलिक। लेकिन अगर बेटा ये sp2 बेंजीन रिंग का हो गया तो वो बन जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। यहां तक किसको क्लियर है? फिर मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं 5th पॉइंट पर, जो फिनॉल है आपका। भाई यहां तक क्लियर हो तो देवी देवताओं लिख दिया करो। ओके सर, आप हमें देवी देवता मत बोलो, बेटा क्या बोलो सर, राक्षस बोलो, हम राक्षस हैं सर, आ जाएंगे आपको। सो वी आर मूविंग ऑन अवर 5th पॉइंट। इट इज if OH is
directly attached with benzene ring, then students it is called phenol. और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, phenol. अब आते हैं, ये किसकी बात करी अभी तक हमने, एल्कोहल की. अब बात करने जा रहा हूं मैं फिनॉल. तो देखो फिनॉल, if only single OH group is present. सबसे पहले बात कर रहे हैं only single OH group present हो. तो देखो जो फेमस एग्जांपल है वही सेलेक्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं. होने को तो लाखों एग्जांपल है इसके, बट हमें सागर नहीं भरना, गागर भरना है, याद रखना. सिलेक्शन के लिए इंटेलिजेंट होना रिक्वायर्ड नहीं है, इंटेलिजेंट के साथ साथ स्मार्ट होना भी रिक्वायर्ड है. इंटेलिजेंट प्लस स्मार्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन. 3 एग्जांपल ये है. फोर्थ वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. OH, NO2, NO2 and N. Now look here. How many OH groups are present here? 1, 1, 1, 1. In all, single OH group is present. So, who will tell me the IUPAC name of this particular compound? बता दो. ये तो कंप्लीट आपका फिनॉल हो गया. फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, चौक कहां गए? 2 पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. 2 मिथाइल फिनॉल. यहां 3 और यहां 4. इट इज 3 मिथाइल फिनॉल. इट इज 4 मिथाइल फिनॉल. ये इनके आईयूपीएसी नेम है. तो 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 मिथाइल. इसका कॉमन नेम सुनना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कौन सी लोकेशन पर है? ऑर्थो. भाई जहां मेन ग्रुप अटैच है उसके जस्ट बाद चाहे आपका आरएचएस हो और चाहे आपका एनएचएस हो, दोनों फर्स्ट लोकेशन ऑर्थो. उसके बाद की दोनों रिमेनिंग क्या? इट इज योर ऑर्थो. दिस वन इज मेटा, दिस वन इज क्या? इट इज कॉल्ड ऑर्थो क्रीसॉल. याद रखना, स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. ऑर्थो क्रीसॉल. ये मेटा पर है तो ये मेटा क्रीसॉल, और ये किस पर है? पैरा पर. तो ये क्या हो गया? पैरा क्रीसॉल. ये याद रखें, ऑर्थो, मेटा और पैरा क्रीसॉल. इसका आईयूपीएसी नेम सुनो. ये 1 है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 बात देखिए. 2 पर, 4 पर और 6 पर. 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो. कौन सा ग्रुप है आपका? नाइट्रो फिनॉल. और इसका कॉमन नेम बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिकनिक एसिड. पिकनिक मत बोल देना सर, बचपन में बहुत जाते थे पापा मम्मी के साथ. नहीं सर, हम तो स्कूल बंद करके भाग जाते थे पिकनिक मत करने के लिए. अरे नहीं सर, हम तो स्कूल वालों के साथ ही जाते थे. देखो अब कहीं नहीं जाना है, यही रहना थोड़ी देर. ये पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड. यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले, नहीं तो इसमें तो ना बोलने वाली बात ही नहीं है यार. पहला 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, ऑर्थो क्रीसॉल, मेटा क्रीसॉल, पैरा क्रीसॉल और पिक्रिक एसिड.
चलो अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक की। यहां सिंगल OH ग्रुप था, अगर मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा ये सोचना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। OH OH second is on metal, third on para। सोचो इनके IUPAC नेम क्या होंगे, और लास्ट इज OH OH एंड O। फर्स्ट का IUPAC नेम सोचो क्या हो सकता है। फर्स्ट के दो नेम है, एक तो एनसीईआरटी ने प्रोवाइड करा रखा है और एक IUPAC ने करा रखा है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका IUPAC नेम होगा वो क्या है, ये बेंजीन ग्रुप है 1 2, बेंजीन ग्रुप 1 3 एंड इट इज 1। अकॉर्डिंग टू IUPAC इट इज बेंजीन 1 2 डाइऑल। ये IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर है, सॉरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC के अकॉर्डिंग एक और होता है, अगर मैं एज अ प्रीफिक्स यूज करूं तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ये मोर करेक्ट है, एप्रोप्रिएट है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आ जाए तो अपर वन को टिक करके आना, और वैसे ये दोनों सही है, ये मोर करेक्ट ये लेस करेक्ट। तो अब मुझे सेकंड वाले का IUPAC नेम बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं सेकंड वाले का नाम, सुनना ढंग से, बेंजीन 1 3 डाइऑल, सही है या गलत है? बेंजीन 1 3 डाइऑल, इट इज करेक्ट और नॉट? ओके, ऐसे बोलना सही है, और मैं पढ़ा रहा हूं तो सही होगा ही होगा ना, गलत क्यों होगा। बेंजीन 1 3 डाइऑल, और एक नाम और हो जाएगा क्या, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका क्या होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल और 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका IUPAC नेम सोचो जरा क्या होगा, इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा। 1 2 3, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, पहला नाम तो ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखो बेंजीन 1 2 3 ट्राई। अभी तो कहानी बहुत बची हुई है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, टाइम पास कर रहा था मैं, सिर्फ समझाना था। ये IUPAC नेम है। एग्जामिनर अगर मैं हूं ना तो इनकी कॉमन नेम पूछूंगा। इसको बोलते हैं कैचेकॉल, इसको रिसोर्सिनॉल, इसको क्विनॉल, और इसको पाइरोगेनोल। देखो नाम लिख रहा हूं, इनको याद रखना। ये होता है कैचेकॉल या कैचेकॉल, कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट है कैच, CATC, स्पेलिंग चेक कर लो एक बार यार, CATE होता है, CATECHO। कई लोग इसे कैचे कॉल भी बोलते हैं, कई लोग इसे कैटे हॉल भी बोलते हैं, बात एक ही है, कैचे कॉल बोलो या कैटे हॉल बोलो। ये है रिसोर्सिनॉल और ये है क्विनॉल, बहुत यूज होगा
रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में बहुत यूज करेंगे हम क्विनॉल। लास्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम होता है वो है पायरो। इसको नोट कर लो पूरे को, इस कंप्लीट को नोट करो, ये बहुत काम आने वाला है। कैसेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल और पायरोकेलोल। पहला वाला जो नोट नहीं किया है उसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इससे नोट करो। अच्छा यहां तक क्लियर किस किस को है वो यस तो बोलो, पता चले। 35 मिनट्स हो गए, टाइम पास चल रहा है। मोनिका चौधरी, कोई पूछ रहा था सर इंदौर से हो क्या? भाई मैं इंदौर से नहीं हूं, मैं राजस्थान से हूं। नाम सुना होगा जयपुर, गलती से वहीं से हूं। नोट करो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया यहां तक बेटा? आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। हाँ बेटा खड़ीगंबा, यस जयसवाल। नोट कर लिया हो तो आगे चलें क्या? बहुत चिल्लाना पड़ता है यार तुम लोगों के साथ। चलो भाई आगे चलते हैं। सर आगे कहां जाओगे? आगे तो दीवार है, पड़ोसी के घर पे जाओगे क्या? नहीं बेटा, आगे का मतलब लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इट इज ईथर। नाउ लुक हियर, ईथर, it is ROR, it is ether, and in IUPAC it is called L-carboxyalkane. It is L-carboxyalkane, and L it is used always for smaller group. जिससे नहीं पता हो एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत हो। इसको मैंने डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। First is ROR, second is ROR dash. Now look here, if I am cleaving it or dividing it into two parts, and here also cleaving it into two parts. Now look here, both parts are similar because both alkyl groups are similar. Both are similar. Here, both are not similar. Here, both are similar. Here, both are not similar. If both alkyl groups are similar, then it is called symmetrical ether. ये होता है symmetrical ether. Both are dissimilar, so it is called asymmetrical ether. ये तो इजी है। फॉर एग्जाम्पल यहां एग्जाम्पल देखना, इसके यहां देखो CS3O CS3, both are methyl, so dear both are similar, hence it is called symmetrical ether. So according to IUPAC both are similar, so L for meth, इसी को भी ले लो, it is methoxy, remaining meth plus N, it is methoxy. Suppose ethyl groups are present here, C2H5O, C2H5, on both sides 2 carbon, so it is ethoxy ethane. Ethoxy ethane. Now we will talk about
कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो, ऑन बोथ साइड इथाइल, सो इट इज डाई इथाइल ईथर, इट इज डाई मिथाइल ईथर। तो यहां पर ऑक्सीजन 2-3 तो हो नहीं सकते कि मोनो ईथर डाई ईथर, ऑक्सीजन एक ही होगा। Here R is not equal to R dash. Look here, आता चालू झाला CS3। अचानक। हाँ ठीक। बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह से नवी क्लास है ये आपकी, अब शोर मत करो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, बाद में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। CS3O C2H5 both are not similar, दोनों सिमिलर नहीं है। अब बात आती है IUPAC की, स्मॉलर ग्रुप क्या है? CS3 पुट कर दूं मेथ, वन कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, मेथॉक्सी। अगर कॉमन नेम पूछे इथाइल, मिथाइल क्या हो गया? ईथर। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, देखना, इसका आईयूपीएसी नेम बोर्ड में एग्जाम में पूछ चुका है, कॉम्पिटिटिव में आईयूपीएसी नेम नहीं आएंगे, ये आप सोचो इतने सिंपल आएंगे, इतने सिंपल कभी नहीं आते। इसका आईयूपीएसी नाम बताएगा तो मुझे क्या होगा? आपको दिख रहा है स्मॉलर ग्रुप CS3 होगा, जो स्मॉलर ग्रुप है वो CS3 है और लार्जर ग्रुप बेंजीन है, तो इसका मुझे आईयूपीएसी नाम बताओ क्या होगा? भाई आईयूपीएसी नाम बताओ यार। मिथॉक्सी बेंजीन, यतिश टू ऑल, आंसर इज करेक्ट, इट इज स्मॉलर पार्ट मेथ। भाई साफ दिख रहा है, 6 कार्बन की जगह और सिंगल कार्बन है, मिथॉक्सी एंड इट इज बेंजीन। कॉमन सिस्टम सोच सकता है कोई क्या होगा? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो यहां तक हमने थोड़ा बहुत टाइम पास किया क्लासिफिकेशन में। अब यहां से जो क्वेश्चन नीट और मेंस में आईयूपीएसी का जाता है ना, वो समझना वो क्या होगा। अभी इपॉक्सी ग्रुप बचा हुआ है, अभी इपॉक्सी ग्रुप बचा हुआ है, तो देखो अगर ईथर साइक्लिक ईथर है आपके पास, किस पैटर्न में? यहां देखना, CS2 CS2O, ये साइक्लिक ईथर है, या ये दे दिया CS3 CH CH2O, या आपको ये प्रोवाइड करा दिया CS3 CH CS3। इसका आईयूपीएसी ने मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ढंग से समझना सबसे पहले बच्चे। इट इज जनरली कॉल्ड ऑक्सीरेन, इसको हम ऑक्सीरेन बोलते हैं। अगर हमने इसको ऑक्सीरेन बोला, इट इज ऑक्सीरेन। अब समझना, इसके अकॉर्डिंग पहले इनका आईयूपीएसी ने मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर ऑक्सीरेन यूज कर रहे हो तो ये 1 होगा हमेशा, ये भी 1 होगा, 1 2 और 3, 1 2 3 इसलिए नहीं बोला, सब्स्टिट्यूएंट यहां से नियरली लोकेटेड, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। अभी एक और बताऊंगा थोड़ी देर बाद आईयूपीएसी में। 1 इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 2 बोलो, बात एक ही है, इसको बोल दिया 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। ये ऑक्सीरेन वाला कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर है बेटा? वो यस बोले। ऑक्सीरेन किस किस को क्लियर है? फर्स्ट नॉर्मल ऑक्सीरेन होगा, सेकंड 2 मिथाइल, कुशल पाटिल, तुम्हें समझ में नहीं आया, गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये ऑक्सीरेन है,
ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का केस हो तो इस ऑक्सीजन को हमेशा फर्स्ट ही लेके चलते हैं। ये फर्स्ट तो ये सेकंड क्यों अज्यूम किया, CS3 यहां से सेकंड पर, यहां से किस पे आएगा थर्ड पर, तो सेकंड वाला सेलेक्ट किया। यहां से इसको 2 ले लो या इसको 2 ले लो, बात एक ही है। 2 मिथाइल रिमेनिंग ऑक्सीजन, 2,3 डाई मिथाइल और क्या हुआ ऑक्सीजन। इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं आती। अब प्रॉब्लम जिसमें आएगी वो है, सुनना क्या, स्टैटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये ग्रुप है ना, इसको बोलेंगे हम एपॉक्सी। रिमेनिंग क्या हो गया, इथेन। ये ग्रुप इपॉक्सी, रिमेनिंग इथेन। इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसका क्या होगा। अब देखो यार, जब इपॉक्सी यूज करोगे ना तो वन इसको नहीं मानोगे, सुन लेना, इपॉक्सीनेट होगा तब वन ये होगा। इपॉक्सी आते ही इन दोनों में से कोई वन बनेगा। तो देख रहे हैं यहां पर इपॉक्सी समझा रहा हूं। इपॉक्सी में देखो ये 1, ये 2 और ये 3। एक बच्चे ने बोला सर नहीं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो देखना अपर डायरेक्शन से इपॉक्सी 1, 2 पर आ रहा है। इपॉक्सी कहां आ रहा है, तो इपॉक्सी 1, 2 पर। लोअर से कहां आ रहा है, 2, 3 पर। तो नियर सेलेक्ट करेंगे ना 1, 2, 3। चेन अब पूरी होगी। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान के चल लो, है नहीं, सिर्फ समझने के लिए। इपॉक्सी इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के चल लो, है नहीं। तो 1,2 1,2 इस पर कौन सा ग्रुप है, इपॉक्सी। 3 कार्बन है तो क्या हो गया, इसको देखना 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यही है। अब इपॉक्सी 2, 3 पर और 2, 3 पर, तो 2, 3 इपॉक्सी और बचा हुआ क्या है, ब्यूटेन। ये ग्रुप इपॉक्सी है 2, 3 पर, यहां 1, 2 पर। ये यहां तक क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। किस किस को क्लियर है वो यस बोले। Okay. Now we are moving on methods of preparation. We are moving on methods of preparation. और बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग। सो हेडिंग इज GMP, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे बेटा। एल्कोहल के लिए फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में सुनना क्या हो सकता है, ये मैंने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH और H। यहां H2O प्रोवाइडेड है और कोई रिएजेंट भी बना। H2O के साथ रिएजेंट जरूर होगा ही होगा, इसकी भी कहानी सुनाऊंगा ऐसा क्यों। तो यहां देखो कई बच्चे ये बोलते हैं सिर्फ डायरेक्ट देख के, सर एसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या ऐसा ही एसिमेट्रिकल एल्कीन, तो मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। तो ये सुनना बात में जो बोलना जा रहा हूं, मार्कोनिकॉप्स रूल डिपेंड्स ऑन रिएजेंट। मैं यहां ऐसी रिएक्शन भी दिखाऊंगा जहां मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई नहीं होगा। रीअरेंजमेंट मत बोलना सर, रीअरेंजमेंट वाला तो पता है, रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा। ऐसे रिएजेंट भी होते हैं बेटा कि जो मार्कोनिकॉप्स रूल को लगने ही नहीं देते, वो एंटी मार्कोनिकॉप्स चलते। तो यहाँ बात करें कौन कौन सी रिएक्शन स्टडी करनी है। अभी तो मैं सिंपल मार्कोनिकॉप्स का बड़ी प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, RCHOH CH, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हमें 3
तीन टाइप की रिएक्शंस की स्टडी करनी है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सेकेंड रिएक्शन जो है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, and the last is in it the last is oxymercuration and demercuration। ये तीन हमें स्टडी करनी है इसके अंदर। तो देखो जो सबसे खतरनाक है ना वो सेकंड है, और आजकल जो एग्जामिनर है वो एडवांस में क्वेश्चन सेकंड से ही डाल रहा है। माइंड में सेट कर लेना, जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड से ही आता है। फर्स्ट तो आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। चलो हेडिंग डालना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये रिएक्शन है। अब सुनना, अगर मैं ये रिएक्शन दे दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां प्रोवाइड करा दूं H2O, तो ये बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? सारे के सारे स्टूडेंट हेलो एल्केन और हेलो एरिन में चैप्टर की स्टडी करके आए हुए हैं, सुन लेना। और चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन्स, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। HX होता, एक बच्चे ने आंसर दिया है CHOH और CH3। चलो ये कौन है? विश्वास पढ़ा है। देखो क्या लग रहा है हमें जनरली, एक पर OH और एक पर H, CH3 CH2 OH। बट मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन होती नहीं है, यहां रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसा क्यों कि रिएक्शन नहीं होगी? तो एक पॉइंट सुनना, मेरे पढ़ाने का तरीका बता दूं, मैं बेसिक से लेके और आपको टॉप लेवल मतलब एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। जब टॉपिक खत्म हो जाए ना तो आराम से कोई भी चैप्टर आप कवर कर सकते हो। तो एक बात बताओ यार, रिएक्शन ही नहीं हो रही यार, ऐसा क्यों? सबसे पहले एक पॉइंट, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? आप सब लोग पढ़ के आए हो क्लास चैप्टर नंबर 10th में। एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? सोचो। रिएक्शन कराने को तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या सेलेक्ट करना है। देखो एल्कीन, इसके पास पाई बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या है? इस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अगर किसी के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो जीओसी से हम ये पढ़ते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। सिर्फ माइनस ही नहीं होता न्यूक्लियोफाइल पे, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर भी हो सकते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो माइंड में सेट कर लो, एल्कीन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। और ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक बेस ही तो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बेस। अब ये बताओ क्या ये बेस इस बेस से रिएक्ट कर जाएगा?
क्या यूनिवर्स में एसिड एसिड या बेस और बेस रिएक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सुनना, अगर ओनली H2O है ना तो आंसर लिख देना नो रिएक्शन, बिकॉज बोथ विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और बेस। यहां तक किस किस को क्लियर है? सुन लेना, दोबारा सुनना, जिसको नहीं पता हो, एल्कीन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और अगर किसी के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा, और जो H2O है उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल हुआ। और न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह एक्ट करता है? बेस की तरह, और एक बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ओनली H2O के बन हो तो रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं H+ का, और H+ कहां से आ सकता है? डाइल्यूट एसिड से। यहां हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO। ये पॉइंट क्लियर है? सुन लेना, नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट आप सबको क्लियर होना चाहिए कि एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया है। ओके, जिसको नोट्स कलेक्ट करने हो वो मैसेज कर देना या आपके सर से बोल देना। इसके अलावा आगे के लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर के हेलो एल्केन हेलो एरीन या फिजिकल के जिसको वीडियो लेक्चर देखने हैं वो चैनल पर जा सकता है। केमिस्ट्री वाला कपिल अवधेश उपाध्याय, ये चैनल है, यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो लिख लेना। चलो लेक्चर ओवर करें, मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि अब आगे रिएक्शन हो भी नहीं सकती आपकी। ओके बेटा, बाय।